ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بامنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد باگرداب ولا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارہ تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمجہ شیخ احمد رضا خان قطب علم میزنم سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت رضوان ہم سنیوں کی جان بریلوی کی پہچان علامت جوان فرید الاوان منبل عرفان عالم معنی و بیان ذو العلم لقان سحیر اللسان مبدل باطل ادیان علم کی چٹان بول دو مسلمان. وہ کہتے ہیں آپ کہیے تو سنا دیتے ہیں ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور کہتے ہیں کہ رخصت قافلہ کشور غصے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کشور غصے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. اور ایک شعر سنیے میرے بھائی میرے عزیز یہ شعر سنیے یہ شعر اچھا لگے تو آپ دل کی آواز نکال کر کے بولیے سبحان اللہ. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے جان ہے عشق مصطفیٰ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اور کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہے تو رضا میرا ستم جرموں پہ گر نہ جائے ہم کوئی بجائے سوزے غم سازے طرف بجائے کی. عقیدت و محبت کے ساتھ آپ ہم درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھ لیجئے زور سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں آپ کا زیادہ ٹائم لے لوں گا بس تھوڑی دیر کے لیے اس وقت میں حاضر ہوں. میں چاہوں گا کہ شادی کے موقع پہ کچھ باتیں پہنچ جائیں کچھ اچھی باتیں عمدہ پیغام میں آپ کے نام کر جاؤں میں بیٹھ جاؤں. اس وقت اسٹیج پہ علماء اہل سنت کی ایک نورانی جماعت نورانی قافلہ موجود ہیں. شارع اہل سنت بھائی مفتی ولی الرحمن صاحب سے آپ نے نعت مصطفیٰ سننے کی سعادت حاصل کی. نقیب اہل سنت ادیب شہر قاری عارف رضا نوری صاحب سے بھی جاندار شاندار آپ نے نظامت سماعت کی. اس وقت اسٹیج پہ شاعر ملک ہندوستان شاعر اعظم ہندوستان بھائی الحاج اجمل عزیزی صاحب مکمل شاعری کے ساتھ تشریف رکھ رہے ہیں. آپ میرے بعد حضرت کو سنیں گے اور جتنے بھی علماء شعراء کا آپ نے پوسٹر کے ذریعے نام سنا ہے وہ سارے لوگ تشریف فرما ہو گئے ہیں. ایک کے بعد دیگر سب کو آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. لیکن میں آج مبارکباد پیش کروں گا بھائی عبد المقتدر صاحب کو کہ انہوں نے اپنی شادی کے موقع پہ جلسے کا انعقاد کیا. ورنہ ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے یہ کہ شادی کے موقع پہ جلسہ کا وہ بھی لوگ محفل سجاتے ہیں رسمن تھوڑی چھوٹی سی محفل لوگ سجاتے ہیں. اس کے بعد محفل ختم ہوتی ہے پھر لڑکے اور لڑکیاں پوری رات ڈی جے بجا کر کے لڑکے بھی ناچتے ہیں لڑکیاں بھی ناچتی ہیں. لیکن انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. شادی میں جو خرافات ہو رہے ہیں یہ لڑکے لڑکیاں ناچ رہی ہے تاکہ انہیں پیغام دیا جائے یہ سدھر جائے. میں کہنا چاہوں گا میرے بھائی میرے عزیز میرے دوست شادی کے موقع پہ آپ ناچو گے آپ کی لڑکیاں ناچے گی لڑکے ناچیں گے پھر وہ شادی نہیں رہ جائے گی بلکہ بربادی ہو جائے گی. ابھی کچھ دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں دہلی میں حادثہ ہوا. 2 کروڑ پتی تھے بہت پیسہ والا تھا غرور تھا دونوں کی شادی ہو رہی تھی تو شادی کے موقع پہ انہوں نے آرکسٹرا بلایا لڑکیوں کو بلایا ناچنے کے لیے ڈی جے لگا کر کے. اسی طرح رات میں رسمن مسلمان کی اولاد تھی وہ لوگ مسلمان تھے وہ لوگ رسمن محفل سجا کے پوری رات ڈی جے بجا کر کے لڑکیوں کو نچا رہے تھے. بہت خوش تھا شراب پیا ہوا تھا تو یہاں تک کہ رات گزرتی گئی اور یہ اس وقت کی بات ہے میرے بھائی جس
इस वक्त ठंड काफी पड़ रही थी, काफी बहुत ज्यादा। तो यहाँ तक के फजर का वक्त आ गया, मस्जिद से अजान हो रही थी, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ लोगो आओ फलाह की तरफ, ओ लोगो आओ कामयाबी की तरफ, ओ सोने वाले सोने से बेहतर नमाज है। तो किसी ने कहा यार तुम मुसलमान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, तुम डीजे बजा के लड़कियों को नचाते हो। तो उन दोनों नौजवान ने कहा अरे अजान रोज होती है, इन लड़कियों को मैंने लाख रुपये पैसा दे के बुलाया है, इन्हें नाचने दो, अजान होने दो। यहाँ तक कि मेरे भाई सुबह हो गई, वो नाचती रही। सुबह होने के बाद अब जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ, वो दोनों लड़कियां बोली अब मुझे छोड़ो। और ये उस वक्त की बात है, ठंड काफी पड़ रही थी, कोहरा वगैरह था, छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो वो दोनों भाई जिसकी शादी हो रही थी बोले ठीक है मैं ही छोड़ के आता हूँ, पैसे वगैरह दे दिया गया। भाई कार जैसी गया हाईवे रोड में, उधर से ट्रक आ रही थी, ट्रक की जद में दोनों गए, दोनों का एक्सीडेंट हो गया, दोनों का जिस्म का हर एक हिस्सा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, शक्लें बिगड़ गई। अब मेरे भाई उन दोनों को यानी 10 बजे बारात जानी थी, अब वो बारात कहाँ जाएगा, कब्रिस्तान जा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि इन्होंने जो काम किया है अल्लाह उसके रसूल को नाराज करके काम किया है। आप भी अगर शादियों में ऐसी हरकतें करोगे मेरे भाई, वो शादी नहीं रह जाएगी बल्कि बर्बादी हो जाएगी। तो मैं कहना ये चाहूंगा, मैं समझाना ये चाहूंगा, ये शादी को आपने क्या समझा है? सुनिए, जिसने निकाह कर लिया है, अलहाज अजमल अजीजी साहब तशरीफ फरमा है, इन्होंने शादी कर चुके। बताइए इनसे पूछिए शादी के बाद और शादी से पहले जो जिंदगी गुजार रहे थे वो क्या था, कि वो किस तरह का मामला था। मुफ्ती वलीउर रहमान साहब, भाई आरिफ साहब, इन लोगों की शादी हो चुकी है, इन लोगों से पूछिए शादी से पहले क्या मामला था, अभी आपके साथ क्या मामला हो रहा है। शादी क्या समझते हैं? सूफिया कहते हैं कि जब एक इंसान निकाह करता है, एक इंसान शादी करता है, तो यूं समझ लो, मैं समझा रहा हूं, जैसे एक इंसान नमाज पढ़ता है, नियत करता है, जैसे नियत की उसने, नियत करने के बाद जब तक वो नमाज में रहता है, रुकू सजदा करता है, जब तक सलाम नहीं फेरता है, जब तक नमाज में रहता है, एक इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है, तो उस वक्त तक उसको सवाब मिलता है जब तक वो नमाज में रहता है। इसी तरह एक इंसान जब रोजा रखता है, तो जैसे ही वो सेहरी करता है, सेहरी से लेकर अफ्तार के वक्त तक उस वक्त तक उसको रोजे का सवाब मिलता है। यूं समझ लो यार मेरे भाई, एक इंसान जब हज के लिए जाता है मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, तो हज के अय्याम जितने दिन होते हैं, जब तक घर नहीं लौटता है इंसान, जब तक हज के अय्याम में रहते हैं, उस वक्त तक उसको सवाब मिलता ही रहता है। तो इसी तरह मेरे भाई, जब एक इंसान निकाह करता है, एक इंसान जब शादी करता है, तो उस वक्त तक उसको सवाब मिलता ही रहता है। जैसे उसकी शादी हुई, निकाह हुआ, जब तक उसकी बीबी उसके निकाह में रहेगी, उस वक्त तक उसको सवाब अता किया जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात पे, लोग कहते हैं मौलाना साहब हमने शादी की ना, तो शादी के बाद नेक औलाद होती नहीं है, नेक औलाद होती नहीं है। मैं कहना ये चाहूंगा, नेक औलाद होने के लिए मेरे भाई पहले आपको नेक बनना पड़ेगा। औरतें कहती है मौलाना साहब मेरी बेटी नेक नहीं है, मेरी बेटी नमाज की पाबंद नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं करती है। मैं कहना चाहूंगा आप पहले नेक बनो, आप पहले नमाज पढ़ो, ऑटोमेटिक आपकी बेटी नमाज पढ़ेगी। लोग आज कहते हैं गौसे आजम का मर्तबा ये है, गरीब नवाज की शान बयान करते हैं, गरीब नवाज ये थे उनकी शान बयान करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, इस ज़माने में मैं बताना ये चाहूंगा, गौसे आजम कोई ऐसे गौसे आजम नहीं बन गए हैं। आइए उनकी माँ की जिंदगी का मुताला करें, उनके वालिद साहब की जिंदगी का मुताला करें तो पता चलेगा, तब जाके गौस का इंतखाब हुआ है। कौन नहीं जानता गौसे आजम की वालिद साहब का नाम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह है। हजरत गौसे आजम के वालिद साहब जंगल बयाबान में चले गए, दरिया के किनारे में चले गए, जाने के बाद मेरे भाई तस्बीह व तहलील में लग गए, 7 रोज हो गए, कुछ खाए नहीं। मुझे वाक्या बताना मकसद नहीं है, मुझे आपको इस वाक्या से ये दिखाना है कि गौसे आजम की माँ कैसी थी, गौसे आजम की वालिद साहब कैसे थे। अपना गौसे आजम की शान ये है, तो गौसे आजम की वालिद साहब जंगल बयाबान में चले गए, 7 रोज हो गए, कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं। 7 दिन के बाद जिस दरिया के किनारे बैठे हुए थे, उसी दरिया के किनारे से एक सेब बहता हुआ जा रहा था। तो गौसे आजम की वालिद साहब सोचे मैं 7
तहत्तुर से मैं कुछ खाया नहीं हूँ, ये सेब उठा के खा लेता हूँ। अल्लाह अकबर। जैसी वो सेब खा लिए, खा लेने के बाद घर की जानिब चलने लगे, सोचने लगे मैंने जो ये सेब उठा के खाया है बगैर इजाजत के उठा के खाया है, आखिर ये सेब है किसका? अल्लाह अकबर। घर की जानिब जा रहे थे, फिर लौट गए, जिस समत से वो सेब बहता हुआ रहा था उस समत से चलने लगे। चलते चलते सामने सेब का बाग नजर आया, जिसकी शाखें, जिसकी टहनियां दरिया से लगी हुई थी। किसी से पूछा ये सेब का बाग है किसका? तो किसी ने कहा एक बुजुर्ग का है। तो गौसे आजम के वालिद साहब बोले चलो मैं उनसे उनका मुलाकात करते हैं, उनका दीदार करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। गए और कहने लगे हुजूर मैंने आपके सेब का बाग से, यानी एक सेब जो बहता हुआ जा रहा था ना, मैंने बगैर इजाजत के उठा के खा लिया है। आप चाहे तो मुझे माफ फरमा दे, चाहे मुझसे मुआवजा ले ले। तो पता है वो बुजुर्ग बहुत गौर से देखने लगे और देखने के बाद नतीजा ये निकाले शायद ये नौजवान मेरी बारगाह में रहेगा और मेरी बारगाह में रहकर अपने नफ्स से अगर मुजाहिदा करेगा तो मुस्तकबिल में इनकी अजीम शान होगी, निराली शान होगी। तो वो बोले बुजुर्ग मैं ऐसी इजाजत नहीं दूंगा। क्यों? इसलिए कि मेरे बाग की रखवाली करनी होगी 10 साल की मुद्दत तक। तो गौसे आजम के वालिद साहब बोले अगर मैं आपके बाग की रखवाली 10 साल की मुद्दत तक करूंगा क्या आप मुझे माफ फरमा देंगे? हाँ माफ फरमा दूंगा। अल्लाह अकबर। 10 साल की मुद्दत तक उस बाग की रखवाली करते रहे। जब 10 साल की मुद्दत मुकम्मल हो गई उसके बाद आ गए उस बुजुर्ग की बारगाह में, कहने लगे हुजूर आप इजाजत दे, अब मुझे जाना है, 10 साल की मुद्दत हो गई। वो बुजुर्ग बोले ऐसी इजाजत नहीं दूंगा। क्यों? इसलिए कि मेरी एक बेटी है, वो मेरी बेटी आंख से अंधी है, वो मेरी बेटी जुबान से गूंगी है, वो मेरी बेटी हाथ से लुंजी है, वो मेरी बेटी पैर से लंगड़ी है, उसी से तुमको निकाह करना होगा, उसी से तुमको शादी करनी होगी। तो वो नौजवान बोले अगर मैं ऐसी लड़की से निकाह कर लूंगा, ऐसी लड़की से शादी कर लूंगा तो क्या आप मुझे माफ फरमा देंगे? कहा माफ फरमा दूंगा। अल्लाह अकबर। वो नौजवान बोले दुनिया जहन्नम की अजाब से बेहतर है ऐसी लड़की से निकाह कर लिया जाए। निकाह हो गया, शादी हो गई। वो बुजुर्ग बोले कि रूम है इसी में तुम्हारी बीवी तशरीफ फरमा है। अब वो नौजवान रूम में गए, ऐसे रूम में गए, आंख नजर पड़ी दुल्हन पे, नजर फट गई, महसूस करने लगे ऐसा लगता है जन्नत से सजी सजाई हूर आ गई है। पलट के बाहर आ गए वो बुजुर्ग नौजवान, बोले हुजूर आपने कहा था आंख से अंधी है, ये तो आंख के हवाले से भी सही है। आपने कहा था हाथ से लुंजी है, हाथ भी तो सही है। आपने कहा था पैर से लंगड़ी है, पैर भी तो सही है। अल्लाह अकबर। तब वो बुजुर्ग बोले सुनिए मैंने जो कहा था हाथ से लुंजी है, मैंने जो कहा था जुबान से गूंगी है, मैंने जो कहा था आंख से अंधी है, इन आंखों ने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा। मैंने कहा था पैर से लंगड़ी है, पैर शरीयत के खिलाफ ना उठे, यही मेरी बेटी है, यही मेरी बेटी है। तो मैं बताना ये चाहूंगा मेरे भाई जिस नौजवान की शादी हुई थी उसी नौजवान का नाम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है, और जिस खातून की शादी हुई थी उसी खातून का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। हजरत उम्मुल खैर फातिमा और हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की इस वादी जिंदगी में चमन विलायत में मेरे भाई जो फूल खिला है उसी फूल को गौसे आज़म कहा जाता है, उसी पीर रोशन ज़मीर कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, महफिले रंगे रज़ा, हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला। तुम माँ ऐसी हो और बाप ऐसे हो तो फिर उस गोद से किसी ऐरू गैरू का पैदा नहीं हो, उस गोद से किसी ऐरू गैरू का इंतखाब नहीं होता बल्कि वक्त का गौसे आज़म पैदा होता है मेरे भाई। तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा आज अगर कोई गौसे आज़म पैदा नहीं हो सकता, आज अगर कोई आला हज़रत नहीं पैदा हो सकता, आज अगर कोई मुफ्ती आज़म हिंद नहीं पैदा हो सकता, आज अगर कोई ताज शरिया नहीं पैदा हो सकता, लेकिन इतना तो हो सकता है मेरे भाई कि गुलाम गौस पैदा हो सकता है, गुलाम आला हज़रत पैदा हो सकता है, गुलाम ताज शरिया पैदा हो सकता है। और ये कैसी होगा? ये उस वक्त होगा जब आप नेक बनेंगे और आपकी बीबी नेक बनेगी। फिर उस गोद से गुंडा पैदा नहीं होगा, माँ बाप की बेइज्जती करने वाला नहीं पैदा होगा, बल्कि उस गोद से आने वाला इस्लाम का झंडा बुलंद करने वाला पैदा होगा, शरीयत और दीन मुस्तफा की हिफाजत करने वाला पैदा होगा। इसलिए मेरे भाई
आप भी नेक बनो। तो मैं हदीस पेश, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, एक हदीस सुनिए गुफ्तगू खत्म। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आप कहते हैं नेक औलाद नहीं होती है, इसकी वजह ये है मेरे भाई, सरकार ने जिसके साथ निकाह करने का हुक्म दिया है, आप उसके साथ निकाह नहीं करते हैं, यही वजह है कि ऐसा होता है। आइए, निकाह करें तो कैसी लड़की से निकाह करें, आपके लिए बीबी हो तो कैसी बीबी हो। सुनिए एक हदीस शरीफ, हजरत आयशा, ये कौन है? प्यारे नबी की प्यारी बीबी है, हम मोमिनों की माँ है। वो कहती है कि आका ने फरमाया 4 वजह से औरतों से शादियां की जाती है। कितनी वजह से? जोर से बोलिए मेरे भाई, 4 वजह से। तो सहाबाए करम अर्ज करने लगे, आका इन 4 वजह में सबसे पहली वजह क्या है? तो आका फरमाते हैं, कुछ लोग हैं कि औरत की खूबसूरती को देखकर शादी करते हैं, ये लड़की बहुत खूबसूरत है, हैंडसम ब्यूटीफुल है, हालांकि उसके अंदर कुरान की तालीम, शरीयत की तालीम, सौम सलात के पाबंद हो या ना हो, तो सिर्फ लोग खूबसूरती की बुनियाद पर शादी कर लेते हैं। ये पहली चीज मेरे भाई। और दूसरी चीज सुनिए, सरकार फरमाते हैं, कुछ लोग हैं कि औरत की हसब नसब को देखकर शादी करते हैं, यहाँ मेरी शादी हो जाएगी, गांव समाज में प्रचार हो जाएगा, इसने शादी की है तो आला नस्ब में शादी की है, आला खानदान में शादी की है। तो कुछ लोग हैं कि औरत की हसब नस्ब को देखकर शादी करते हैं, ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज सरकार फरमाते हैं, कुछ लोग हैं कि औरत की मालदारी को देखकर शादी करते हैं, मेरी शादी वहां हो जाएगी, ससुराल वाले हर तरह से मजबूत कर देंगे, सोना देंगे, गाड़ी देंगे, इतना जहेज देंगे, मेरा घर भर जाएगा, गांव इलाका में शोर मच जाएगा कि इन्होंने शादी की है तो मालदार घराने में शादी की है। ये तीसरी वजह। सरकार फरमाते हैं चौथी वजह, कुछ लोग हैं कि औरत की दीनदारी को देखकर शादी करते हैं, अरे ये तो गरीब बाप की बेटी है, लेकिन इसके अंदर कुरान की तालीम है, इसके अंदर शरीयत की तालीम है, ये सलात की पाबंद है, हजरत फातिमा के नक्शे कदम पे चलती है। तो सहाबाए करम अर्ज करने लगे, आका ये तो बताइए इन 4 वजह में सबसे अच्छी वजह क्या है? तो आका कहते हैं, खूबसूरती को छोड़ो, हसब नसब को छोड़ो, मालदारी को छोड़ो, अरे जो लड़की दीनदार है उसी लड़की से निकाह कर लो, उसी लड़की से शादी कर लो। क्यों? इसलिए कि जब घर में दीनदार औरत आएगी तो घर को दीनदार आएगी। इसलिए अल्लाह उसके रसूल के यहाँ सूरत जारी नहीं है, सीरत जारी है। बातें करना चाहता तो बहुत हो सकता था, लेकिन सबका ख्याल करना है, इतना ही काफी है। अगर असर कर जाए, अमल हो जाए तो आपकी भी जिंदगी कामयाब, हमारी भी जिंदगी भी कामयाब। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मेरी हाजिरी कबूल फरमाए, आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए।